کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے پاؤں کے ناخن نکالے ہوئے ہیں۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کمزوری، جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اتنا سفر کرنے کے بعد۔ قید ہوتی ہے، دال ہوتی ہے، اس کے باریک سی دال پانی کی طرح ہوتی ہے، خوراک انسان کو نہیں ملتی، اس کی وجہ سے جسم جو ہے نا وہ انسان کا بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں وہ روم میں بند کر دیا انہوں نے، تو کہا کہ یہاں پر آپ نے جو ہے نا پیمنٹ دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ روزگار یا حالات کی بہتری کے لیے ہجرت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کسی جگہ کی زمین یا حالات انسان پر تنگ ہو جائیں تو اسے اپنے حالات کی بہتری کے لیے ہجرت کرنا چاہیے۔ تہذیب و تمدن کی ترقی نے خدا کی اس خوبصورت سرزمین کو سرحدوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ کو زاد راہ کے ساتھ ساتھ سرحد پار کرنے کا پروانہ بھی چاہیے، جسے عام طور پر ویزا کہا جاتا ہے۔ تاہم ہر سرحد کے اپنے قوانین اور وہاں جانے کے اپنے اپنے ضوابط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء کی یہ سنت کسی حد تک مشکل اور مہنگی ہو کر رہتی ہے، خصوصاً تیسری دنیا کے ان باشندوں کے لیے جن کے لیے اپنے ملک میں بھی ضروریات زندگی کا فقدان ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ہجرت کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر تیسری دنیا کے ممالک سے ہر سال لاکھوں لوگ غیر قانونی طور پر غیر ممالک کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو راستے میں ہی ہمت یا پھر سرے سے زندگی ہی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوتے بھی ہیں تو وہ زندگی بھر راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں کے ٹرامے سے نکل نہیں پاتے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک سٹوری آپ بیتی کے طور پر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سن مرنا شوق بھی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سفر کی کہانی شروع ہوتی ہے جب انسان مجبور ہو جاتا نا کسی بات کے اوپر، زندگی کا کوئی حل نہیں نظر آتا، پھر وہ کوئی بہت مشکل جو ہے نا قدم اٹھاتا ہے اپنی زندگی میں۔ بالکل۔ تو میرے لیے سب سے مشکل قدم یہی تھا کہ میں پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جاؤں۔ سفر میں جب میں یہاں سے نکلا تھا تو میرے پاس تقریباً 300 یا 400 روپیہ ہوگا جب میں گھر سے نکلا تھا۔ جانا تو میرے کزن نے تھا، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا اور اس کی جگہ میں نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا مشکل سفر ہے۔ میں جس طرح سنتا تھا کہ یہ آسان ہے یورپ جانا یا کسی دوسری کنٹری میں، اور وہ بھی بغیر پیسوں کے، لیکن جب میں اس راستے پہ جانے لگا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس میں انسان کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ پھر نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ کوئی آگے مجھے لے کے جانے والا تھا۔ نہیں تو بغیر پیسوں کے کیسے گئے آپ؟ یا کوئی ایجنٹ تھا، اس سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب آپ یونان پہنچ جائیں گے تو آپ وہاں پہنچ کے آپ نے جو ہے نا 9 لاکھ روپیہ دینا۔ شروع میرا سفر ہوا تھا، یہاں سے میں چلا گیا تھا منڈی بہوٹی، وہاں کا ایجنٹ تھا، اس سے بات ہوئی تو اس نے جو ہے نا ہمیں کہا کہ آپ کوئٹہ چلے جاؤ۔ اچھا۔ ہم کوئٹہ چلے گئے۔ کوئٹہ جب ہم ایران کے بارڈر پہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں جو ایران کے بندے ہیں ان کے حوالے کر دیا۔ گئے کیسے تھے کوئٹہ؟ یہ بس کے اوپر سفر کر کے ہم گئے۔ اچھا، تو بارڈر بھی بس کے ساتھ ہی؟ نہیں، وہ ہم نے پیدل کراس کیا تھا۔ اچھا۔ چھوٹے ڈالے جو ہے نا جو سوزوکی، ان کے اوپر وہ پہاڑوں کے راستے، کچھ پیدل، کچھ خندق بنائی ہوئی تھی ان کے اندر سے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹارٹ میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن
वापसी का रास्ता भी उस वक्त नहीं था। यानी कि वापस भी नहीं आ सकते। मैंने उस टाइम सोचा भी है कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जिस रास्ते पे आ गए हैं ना, ये जितना मुश्किल है ना आगे जाना, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल वापस जाना है। अच्छा। क्योंकि आप वापस जाएंगे, आपको पुलिस वाले पकड़ेंगे, वो मारेंगे, वो आपको फिर नैब के हवाले या दूसरे पुलिस के हवाले करेंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने समझा शायद आगे जाना बेहतर है। ठीक है। अच्छा, ईरान से फिर आगे कैसे गया आपने? ईरान से फिर हमें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एजेंट के हवाले करते गए। यानी हमारी जो है ना, समझ ले के जिस तरह एक से दूसरे बंदे के हमें वो बेचते गए। अच्छा, बेचते गए। हाँ जी, ऐसे ही होता है। कोई ये नहीं होता कि एक ही बंदा जो आपको लेके जाता है आगे तक, यूरोप तक, ऐसा नहीं होता। ओके, अच्छा। आप जितने शहर क्रॉस करते हैं आप बिकते जाते हैं। ओके, अच्छा। तो कितने लोग थे आप लोग? हम लोग तकरीबन 20 लोग थे। अच्छा, और सब के सब पहुंचे थे? नहीं, उसमें काफ़ी कुछ जख्मी हो गए, कुछ वापस आ गए। वापस यानी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। वैसे ही बचते बचाते जो है ना, हमने बड़ी मुश्किल से सफ़र किया। कितने लोग वहाँ तक पहुँचे थे? तकरीबन वो ऐसा होता है ना कि हर आदमी के, किसी के 10 बंदे हैं, किसी के 20 हैं। एक दो गाड़ी नहीं होती, तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा। तो वो एक वो ट्राला बन जाता है, उसमें फिर डाल के ना वो बॉर्डर पे लेके जाते हैं। फिर बॉर्डर से जो है ना पैदल क्रॉस कराते हैं। अच्छा। यानी कि बचते बचाते इस तरह जो है ना, हम तकरीबन 25-30 जो आदमी जो है ना, वो आगे तुर्की के बॉर्डर तक जो है ना पहुँच गए। अच्छा। तो एक दफा मैंने सुना था ना कि आपको पता नहीं लॉक भी कर दिया था, कुछ ऐसा था? वो ऐसा था ना कि जब हम तुर्की में पहुँच गए थे ना, तो जब हमें वो रूम में बंद कर दिया, उन्होंने तो कहा कि यहाँ पर आपने जो है ना पेमेंट देनी है। अच्छा। लेकिन हमें बताया गया था कि हम जब यूनान पहुँचेंगे उस टाइम पेमेंट देनी है। अच्छा। लेकिन जब हम तुर्की में आ गए ना, तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे हमें बैंक नंबर दिया। उसने कहा आपने ना 24 घंटे के अंदर इसमें 9 लाख रुपया जमा करवाना है। यानी कि ब्लैकमेल। ओके। तो वहाँ पहुँच के हमने जब लोगों को देखा, किसी के बाजू टूटा हुआ है, किसी के पाँव के नाखून निकाले हुए हैं, तो यानी कि वो काफी दहशत वाला माहौल था। यानी कि ये सब वो लोग मारते थे? वही लोग मारते थे जो अच्छा। कुर्दे होते थे वहाँ। यानी कि बहुत जुल्म करते थे, जिससे वो घर वाले जो है ना परेशान होके फिर वो पैसे देते थे। अच्छा। तो वहाँ से आप भागे कैसे? तो मुझे भी उन्होंने एक दिन टाइम दिया कि आपने जो है ना कल तक जो है ना इसमें अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं। अच्छा। तो मुझे तो पता था कि मेरे इतने वसाइल नहीं थे, मैं जिस हालात में निकला हूँ। तो काफ़ी लोगों को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से बंदोबस्त पैसों का नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो फिर एक ही हाल था, यहाँ फिर भाग जाऊँ या फिर इनके हत्थे चढ़ के अपनी जान दूँ। लेकिन अल्लाह के करम नवाजिया, पीछे घर वाले ने दुआ की। तो एक रात सोए हुए थे हम सब लड़के, तो मैंने सोचा कि मैं आज खिड़की के रास्ते भाग जाऊँगा। लेकिन जिस रात सो रहे थे तो मैंने देखा कि दरवाजे का लॉक खुला हुआ है, वो जो उसका चौकीदार है वो भी पास ही सोया हुआ। तो सुबह का टाइम था, मैंने वो ताला खोला और वहाँ से भाग गया। और भागते भागते तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैंने किधर जाना है, किधर नहीं, समझ नहीं आ रही थी। घूम फिर के फिर उसी जगह आ जाता था, क्योंकि मेरे लिए नई जगह थी, नए रास्ते थे, कुछ पता नहीं था किधर जाना मैंने। लेकिन फिर मैंने घर से राब्ता किया, पता चला, फिर किसी के जानने वाले का नंबर मिला, तो वो मुझे अपने पास ले गया। अच्छा। ये कहाँ की, यूनान की बात है? ये तुर्की की बात है। अच्छा। वहाँ तकरीबन 3 महीने गुजर गए ऐसे, कभी आज जाना है, कल जाना है, वो वक्त गुजरता गया। फिर वहाँ से हमने एक और जगह पे क़याम किया तकरीबन 2.5 महीने। अच्छा। उनका भी, वो कभी कहते थे आपको समंदर के रास्ते लेके जाते हैं, आप पहले पैसे दे दें। यानी कि वहाँ से जाके नए एजेंट से, हाँ, नए एजेंट। ठीक है। लेकिन फिर उससे भी बात नहीं हुई, फिर वहाँ से भी हम भाग के ना
एक तीसरे बंदे के पास चले गए। अच्छा अच्छा। वहाँ पे बैठ के फिर घर वालों से रब्ता हुआ, लेकिन फिर हमें एक बंदा मिला जिसने कहा कि मैं जो है ना आपको जानने वाला था, उसने कहा मैं आपको पहुँचा दूँगा। हाँ, फिर उसके ज़रिए जो है ना हम यूनान पहुँचे हैं। तकरीबन 2-3 दिन का सफ़र था, बारिशें थी और नहर का कश्तियों के ज़रिए, यानी बहुत मुश्किल, यानी समझ ले कि हर टाइम ऐसे ही लगता था कि अभी मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस तरह करते कराते जो है ना हम तकरीबन यूनान जब पहुंच गए, वहाँ जाके सर्दी थी, वो ठंड की वजह से कमज़ोरी, जिस्म ने काम करना छोड़ दिया था इतना सफ़र करने के बाद। जब आप सफ़र में होते हैं ना तो आपको खाने को कुछ मिलता है, कैद होती है, दाल होती है, उसके बारीक सी दाल पानी की तरह होती है, खुराक इंसान को नहीं मिलती। इसकी वजह से जिस्म जो है ना वो इंसान का बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जाके फिर ना वो काम कर सकते थे ना कुछ थे, इसी तरह बस 2-3 साल इसी तरह गुजर गए, ना कोई पेपर थे ना कुछ था। यूनान कितने लोग पहुंचे थे? यूनान तकरीबन 30-40 लोग पहुँचे थे। अच्छा। पहुँच तो सब जाते हैं, लेकिन किस्मत से 100 में से 10 बंदे जाएंगे, 90 नहीं जाएंगे। जो 10 पहुँचते हैं वो यही कहते हैं कि बड़ा आसान था, लेकिन वो जब पहुँच जाता है फिर वो उसको आसान लगता है, उसको भूल जाता है पीछे का। लेकिन इंसान जब इस काम में पड़ता है ना तो उसको पता चलता है कि हर टाइम उसके मौत सामने होती है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त मैंने अपने इस सफ़र में गुजारा और देखा है। तो यूनान के बाद फिर आप सेटल हो गए? यूनान में मैंने तकरीबन 3-4 साल गुजारे हैं, लेकिन ना कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कोई जॉब थी, यानी कि वहाँ के हालात भी बहुत बुरे थे, क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम। फिर मैंने 3-4 साल बाद कोशिश की कि यहाँ से आगे मूव कर जाऊँ। तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नहीं तो कोशिश कैसी की थी, लीगल या इलीगल? अनलीगल। लीगल आप जा नहीं सकते, आपके पास कुछ पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कैसे जाएंगे? अच्छा। तो अनलीगल वहाँ से कोशिश की, तकरीबन 3-4 दफ़ा कोशिश की, नाकाम हो गए। किधर जाने की? आगे फ्रांस के लिए। अच्छा। तो लास्ट टाइम मैंने दिल में सोचा कि ये आखिरी टाइम है, अगर चला गया तो ठीक है, वरना पाकिस्तान चला जाऊंगा। ठीक। तो बस अल्लाह ताला ने करम किया, तो उस दौरान फिर वहाँ से डंकी लगाई इटली के लिए। वहाँ से फिर मैं इटली चला गया। फ्रांस से नहीं, यूनान से गया। अच्छा, यूनान से इटली। यूनान से गया था टैक्सी के जरिए इटली, फिर वहाँ से जो है ना फ्रांस चला गया था टैक्सी के जरिए। तो अब आप माशाल्लाह सेटल हैं। बस 10 साल तकरीबन गुजर गए थे डॉक्यूमेंट्स के लिए, ना कोई पेपर था ना कुछ था, बस अच्छा। ऐसे हालात थे। लेकिन 10 साल के बाद जब पेपर बने तो उसकी अपनी एक खुशी होती है, अपने बहन भाइयों से, अपनी औलाद से, बीवी से इतना अरसा दूर कैसे गुजरता है इंसान को वही जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने अरसे के बाद आए? मैं तकरीबन 10 साल 10.5 साल के बाद वापस आया पहली बार। ठीक ठीक। अच्छा, इस दौरान मतलब जब आप ये मुश्किलों में थे तो पीछे आपकी फैमिली के क्या हालात थे? फैमिली के हालात तो बस जब तक मैं सफ़र में था, वो जब तक काम नहीं था, वो तो आपको भी पता होना चाहिए कैसे हालात होते हैं इंसान की फैमिली के। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद जब प्रदेश में थे, वाले साहब फौत हो गए, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर और छोटा भाई, तो इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल जो ना टाइम होता है वो। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जाने से आपकी फैमिली को फ़ायदा हुआ? आपकी बच्चों की परवरिश के हवाले से बताएं। बच्चों की परवरिश तो वो तो कह सकते हैं आप, असर पड़ा, मतलब कि बाप के असर तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। इंसान वाले सर पर हो तो बच्चों की तरबियत कुछ और होती है, ना होने से कुछ और होती है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे जो है ना वालिदा की तरबियत के साए में अच्छी तरबियत की है उन्होंने, अच्छे रहे। लेकिन क्या आप समझते कि अगर आप होते तो आपके बच्चे बेहतर कोई वो कहते हैं तरबियत हासिल कर सकते थे, कामयाब हो सकते थे? नहीं, जब मैं निकला था तो आपको भी पता है कि मैंने किन हालात से निकला हूँ। जो हालात थे उससे तो बच्चों के लिए
तरबियत अच्छी नहीं हो सकती। अगर घर से निकला हूँ तो वो भी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है आज तक किया है, फैमिली के लिए किया है, तो अच्छा वक्त गुजरा है, अच्छा हो रहा है जो भी है, अल्लाह ताला। मतलब अब आके माशाल्लाह से हाँ बेहतर अब है। आके, लेकिन हालात जो है ना वो बहुत मुश्किल के बाद जो है ना इंसान कुछ हासिल करता है। हाँ, हाँ। अगर आप कहें कि आसानी से कुछ हासिल हो जाए, वो नामुमकिन है। औलाद को भी मैं समझता हूँ, और जो पीछे फैमिली ख़ानदान है उनको भी एहसास होना चाहिए कि ये पैसा जो है ना आसानी से नहीं आता, इसकी कदर करनी चाहिए, एहसास करना चाहिए कि आप यूरोप चले गए हैं कोई अय्याशी के लिए नहीं है। हाँ। आप लोगों के लिए, फैमिली के लिए इंसान जाता है। तो ज़्यादा लोग तो यही समझते हैं शायद उधर से पैसा बड़ी आसानी से कमाया जाता है, हम इधर खाएं, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है। पैसा कमाना पाकिस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल है। कितनी ठंड है, क्या हालात हैं, कैसे कमाया जाता है, जो वहाँ पे कमाता है ना उसको पता है। ये तस्वीरें, ये पिक्चर देख के इंसान जो अंदाजे लगाते हैं ना वो बिल्कुल गलत है। हर इंसान सोचता है कि मैं शायद यूरोप में हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ ये वो, कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए ऐसा सोचे मत। वहाँ की ज़िंदगी बहुत टफ है, उसके लिए अपना आप मारना पड़ता है, फिर फैमिली खाती है। सही है। जिसने अय्याशी करनी है वो पीछे कुछ नहीं बेच सकता। तो इसीलिए पीछे वाले जितने भी हैं जिनके यूरोप में हैं, उनके पीछे वालों को मेरी गुजारिश है कि आप खुदा के लिए उनके पैसों की कदर करें, एहतियात से खर्च करें और एहसास करें, और उनको टेंशन या परेशान ना करें, फजूल खर्ची से परहेज करें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अगर आपने कोई हुनर सीखा होता या ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो इसका कोई फ़ायदा होता? जाहिर सी बात है, कोई हुनर या कोई पढ़ा लिखा होता है, उसकी कुछ अपना स्टेटस होता है, उसके लिए आगे बढ़ना आसानी होती है। बगैर पढ़े लिखे या बगैर हुनर के इंसान की किसी जगह भी कदर नहीं है। सही। तो इसके लिए जितने भी हैं, मैं तो कहता हूँ मेरी औलाद है या दूसरे भी बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए पहले अपने अंदर कुछ पैदा करें, कुछ हुनर सीखें, पढ़ें। तालीम हासिल ज़रूरी है। हाँ, टेक्निकल तालीम ज़्यादा टेक्निकल और दूसरा पढ़ाई जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपने बढ़ना है, अगर मजदूरी करनी है तो फिर वो आपकी कामयाबी नहीं है। वो आपने सदा सारी उम्र ऐसा मजदूर ही रहना है, आगे आप नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए, उनके सबसे गुजारिश है कि तालीम और हुनर ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो या इससे आपको कोई सबक या मोटिवेशन मिला हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके मुतालिक हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।